تو انڈیا نے اپنی یوتھ کیپٹل کو اتنا ایجوکیٹ کر لیا ہے کہ ان کی یہ چیز ایکسپورٹ میں ان کو کافی اوپر لے گئی ہے. انڈیا اس کی ایکسپورٹ کرتا ہے تقریباً $5 ارب سالانہ, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ایک جو ہے نا تھیلی بھی نہیں ہم بیچتے, ٹھیک ہے. تو ستارہ کیمیکل والوں نے کام شروع کیا تھا, جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ باجوہ صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ کام شروع کیا تھا, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں جا سکے کیونکہ ہماری نا گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے اس معاملے میں. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ایران کی آئل ایکسپورٹ سے بڑھ گئی ہے, اور ایران کی جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ ان کا نیچرل ریسورس ہے, لیکن جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ تو ایک لرن کرنے والی چیز ہے, وہ کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے, وہ کوئی بھی ملک لرن کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے جیسے ملک میں ماں باپ بچوں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں, وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا, آنے والی نسل کے لیے آسانیاں ہوں گی, لیکن جب اسے ملک کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ باہر ہی جائے گا. ہم اپنے نیبرز کے ساتھ کس طرح کا تعلق بنا کے رکھتے ہیں, یہ سب سے اہم فیکٹر ہے. تو اس میں انڈیا ہم سے کافی بہتر ہے, ان کا سسٹم ہم سے کافی بہتر ہے, جس کی وجہ سے ان کے سارے نیبرز کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. زراعت کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. ریسرچ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں, جیسے اسلام آباد میں ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے, ٹھیک ہے, NARC کے نام سے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے. یہ بہترین اپرچونٹی ہے بڑی کمپنی کا بھاگ جانا چھوٹے بزنس مین کو فلرش کرنے کے لیے. چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ ہے, گھروں میں بیٹھ کے وہ گھڑیاں بناتی ہیں, اور ہمارے جیسے ملکوں کے پرائم منسٹر کئی کروڑ کی گھڑی وہاں سے خرید کے آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ معاذ صدیق. محمد انوار الاسلام. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کاف ریئیکشنز. ویورز, ایک خبر کے مطابق ہسٹری کی سب سے بڑی انڈیا اور رشیا کی ٹریڈ $50 بلین کی ٹریڈ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, اور ایک خبر کے مطابق آنے والے دور میں یہ ٹریڈ جو ہے وہ اس سے ڈبل ہو سکتی ہے 2030 تک. ہم چائنا اور پاکستان کی اگر ٹریڈ کی بات کریں تو اس کی امپورٹ ایکسپورٹ میں وہ بیلنس کیوں نہیں ہے جو کہ انڈیا کا ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی اپنے جتنی بھی تمام کنٹریز ہے, رشیا کے علاوہ باقی تمام کنٹریز کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہے, لیکن پاکستان کی کسی بھی کنٹری کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہے. اگر پاکستان کی ٹریڈ کی بات کریں تو ہم اپنی ایسی کون سی پروڈکٹ یوز کریں جو ٹریڈ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے اور پاکستان کی ٹریڈ میں بہتری لائی جا سکتی ہے. چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف, ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. جی, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے آپ نے تعلقات کی بات کی ہے, انڈیا کی اگزامپل دی ہے, تو آبویسلی اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور فورن پالیسی, ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہے, ہم اپنے نیبرز کے ساتھ کس طرح کا تعلق بنا کے رکھتے ہیں, یہ سب سے اہم فیکٹر ہے. تو اس میں انڈیا ہم سے کافی بہتر ہے, ان کا سسٹم ہم سے کافی بہتر ہے, جس کی وجہ سے ان کے سارے نیبرز کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. ہمارے ہاں تھوڑا سا انلکلی اس چیز کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ بزنس ریلیشن بنا نہیں پائے. اور دوسرا, ٹیکنیکلی اگر بزنس کی امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں, بزنس گروتھ کی بات کریں, تو اسپیشلی ہمارے اس ریجن میں جتنے بھی ہمارے نیبر کنٹریز نے گرو کیا ہے, ان کی دو چیزیں مین فیکٹرز ہیں جن کی بیس پہ انہوں نے گرو کیا ہے. ایک ہے ان کا ہیومن کیپٹل, کہ ان کے لوگ کتنے ایجوکیٹڈ ہو کے پھر وہ ایک دفعہ برین ڈرین ہوا, وہ دوسری یورپین کنٹریز میں, امریکہ میں جو ویل سیٹلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ گئے, وہاں سے انہوں نے ریمیٹنس بھیجی, وہ لوگ کو پیسے ملے ان کے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک ریورس برین ڈرین ہوا. اس ریورس برین ڈرین نے ان کے ایجوکیٹڈ ہیومن کیپٹل نے واپس آ کے پھر ان کے لوکل ہیومن کیپٹل کو ایجوکیٹ کیا, اور سکل کی شکل میں ایک بہت بڑا ریونیو وہ جنریٹ کر رہے ہیں. ریسنٹلی میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ ایران کی آئل ایکسپورٹ سے بڑھ گئی ہے, اور ایران کی جو آئل ایکسپورٹ ہے وہ ان کا نیچرل ریسورس ہے, لیکن جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ تو ایک لرن کرنے والی چیز ہے, وہ کوئی نیچرل ریسورس نہیں ہے, وہ کوئی بھی ملک لرن کر سکتا ہے. تو انڈیا نے اپنی یوتھ کیپٹل کو اتنا ایجوکیٹ کر لیا ہے کہ ان کی یہ چیز ایکسپورٹ میں ان کو کافی اوپر لے گئی ہے. ہمارے کنٹری کی انلکیلی برین ڈرین ہی ہو رہا ہے, ریورس برین ڈرین کے سٹیپ میں ہم نہیں جا پا رہے, کیونکہ ہم وہ کانفیڈنس نہیں دے رہے اپنی یوتھ کو, جس کی وجہ سے واپس آ کے وہ کنٹری کے لیے اس کا فائدہ ہو. اچھا, جو دوسرا فیکٹر ہے, ہمارے ایشیا کی قومیں جس فیکٹر سے اوپر گئی ہیں وہ ہے ایس ایم ایز, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز, چھوٹے پیمانے کی انڈسٹری, جس میں بالکل بنیاد سے انڈسٹری کھڑی کی جاتی ہے اور گھر گھر میں لگتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال چائنا ہے ہمارے پاس, ایران ہے, انڈیا ہے, انڈونیشیا, ملائیشیا ہیں. آپ کو ان سارے کنٹریز کی میڈ ان ایران, میڈ ان چائنا, میڈ ان انڈیا پروڈکٹس ملیں گی.
और मेड इन पाकिस्तान हमारे पास कुछ नहीं है। चाइना ने आज से कोई 50 साल पहले एक्सपोर्ट ब्यूरो, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ब्यूरो ऑफ चाइना एक डिपार्टमेंट बनाया था। उस डिपार्टमेंट ने चाइना की पब्लिक से, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो भी चीज़ आपको बनानी आती है हमें बताएं, हम बजट देंगे, आपने बना के हमारे हवाले करनी है। वो दुनिया में कहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकती है ये देखना उस डिपार्टमेंट का काम था। वो पहला स्टेप था जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए चाइना ने लिया था, और 50 साल में दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर एक्सपोर्टर तकरीबन वो बन चुका है। तो दो चीज़ों की कमी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एक तो बिल्कुल घरेलू पैमाने की बुनियादी इंडस्ट्री नहीं है, उसका स्किल नहीं है। दूसरा, हमारा जो यूथ एजुकेटेड है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन रिवर्स ब्रेन ड्रेन की तरफ हम नहीं आ रहे। थैंक यू सर। आपने बात की आईटी की, एजुकेशन की, ब्रेन ड्रेन की। सर आईटी और एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में तो हम बहुत ज्यादा पीछे जा रहे हैं इस वक्त। उसके बाद मैं आ जाता हूँ आईटी पे। आईटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान में, जो भी बच्चा आईटी करता है वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करता क्योंकि उसको उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता। दूसरे नंबर पे जिस बच्चे ने आईटी की हुई है, आईटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे वेला समझा जाता है उसको, उसकी कोई यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं है। सबसे पहले तो हम अपने नॉलेजेबल स्टूडेंट जिनके पास अच्छे स्किल्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। जब एक बच्चा यहाँ से स्किल सीखता है, सीखने के बाद वो किसी और कंट्री में जाके अपने स्किल्स को बेचता है, तो फिर वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा जिसकी स्किल्स किसी और कंट्री में बेचे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि सरमाया जो है ना ये बड़ा डरपोक और शर्मीला सा होता है, इसको जरा सा डरा दिया जाए तो ये भाग जाता है। तो जब तक हम अपने सरमायादार, अपने टैलेंटेड यूथ, अपने स्किल की, अपने आईटी के ह्यूमन कैपिटल की हिफाजत नहीं करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक ये पाकिस्तान में टिकने वाले नहीं हैं। सर आपने घरेलू स्टेबिलिटी की बात की कि यहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को कि उनकी जो स्किल्स हैं वो वहां पे बैठ के काम करें और वो वहां से अर्निंग करें और कंपनी को भी फायदा हो। अगर हम बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे कोई भी कंट्री, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन बैठे हुए थे वो भी अपनी पेमेंट्स, अपना सब कुछ रोक के बैठ गए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए तो फिर हम कैसे कुछ ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट हो और उसमें अर्निंग हो। जैसे सी पैक था वो बंद हो गया, उसके बाद तो अब तक हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आई। बुरे से बुरे हालात में भी उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। बल्कि जो अपॉर्चुनिस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहते हैं कि बुरे से बुरे हालात में भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नई निकल के सामने आती है, उसको देखने की जरूरत होती है। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां सारी भाग जाएं, बड़े बिजनेसमैन सारे भाग जाएं, यही टाइम है छोटी इंडस्ट्री को खड़ा करने का। गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म ऐसा डिजाइन करे जो सबसे पहले ये डिफाइन करे कि स्किल वाइज और एजुकेशन वाइज किस तबके के कितने अफराद हमारे पास अवेलेबल हैं, वो कौन सा काम कर सकते हैं। छोटी प्रोडक्ट्स पकड़ें, छोटे छोटे स्किल पकड़ें, उनको ट्रेन करें, उनके मुताबिक जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसको बेहतरीन यूटिलाइज करें। जो इंपोर्ट हो सकता है उसकी इंपोर्ट में थोड़ी नरमी लेकर आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको थोड़ा आसान करें, उनको स्किल देकर घरेलू इंडस्ट्री को खड़ा करें। फिनिश प्रोडक्ट तैयार होगी, उस फिनिश प्रोडक्ट को दुनिया में एक्सपोर्ट कैसे करना है इस पे गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट काम करे। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बड़ी कंपनी का भाग जाना छोटे बिजनेसमैन को फ्लरिश करने के लिए। छोटा सा स्विट्जरलैंड है, घरों में बैठ के वो घड़ियां बनाती हैं और हमारे जैसे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर कई कई करोड़ की घड़ी वहां से खरीद के आते हैं। छोटा सा स्विट्जरलैंड है, वो चाकू बनाती हैं, नाइफ बनाती हैं, मिलिट्री नाइफ पॉकेट्स में आ जाती हैं, छोटी सी प्रोडक्ट है। दुनिया में सबसे महंगे मिलिट्री नाइफ उनके बिकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे भाई ने बोला कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मतलब हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आईटी का सेक्टर है, बहुत सारी मतलब आईटी का सेक्टर है या कोई भी चीज, सनतें हैं, घरेलू सनतें हैं, कुछ भी है इस तरह का। तो हम ना असल में लैक वही करते हैं कि हम ना जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको, जैसे इन्होंने बोला कि उनको हम लोग जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं देते और उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला जो फार्मूला है उसके ऊपर भी नहीं। उसके लिए क्या किया जा सकता है, कर्जे की सहूलत दी जा सकती है। लोगों को जो है वो घर में जो बैठी हैं औरतें हैं वो काम कर रही हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट होते हैं हमारे घर में, कुछ चीजें मतलब बना के वो बेचना चाहती हैं, उनके लिए आसानी की जा सकती है। सिलाई के बहुत सारे काम है जो है
दुनिया के अंदर जो है ना दोबारा लोग अब इसी चीज पे आ रहे हैं कि हाथ की कढ़ाई, हाथ की सिलाई की चीजें यूज करना शुरू हो गए। वो हैंडीक्राफ्ट में आती हैं सारी चीजें। अगर हम उनको भी थोड़ा सा करें और उनकी उनकी मदद करें, उनको मतलब मैंने कहा कि कर्जे दें या उनको मशीनें ऐसी दी जाएं जो उनको या उनको सिखाया जाए, स्कूल जो है ना वो खोले जाएं जिनमें हम जो है वो लोगों को जो है वो स्किल सिखा सकें, ठीक है। यानी कि जिस तरह भी हो सके हम जो अपनी मतलब जो हमारे नौजवान जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है, स्किल्स हैं, कुछ डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्री होगी तो हम जॉब्स देंगे। अब हम ये बात करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो डिग्रियां लेने के बाद जो असल दिमाग जो हमारा है, जो हमारे लिए मुल्क के लिए कुछ कर सकता है, वो बाहर जा रहा है, तो उसने बाहर ही जाना है। जब हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो वो डेफिनेटली बाहर ही जाएगा, उसने तो पैसा कमाना है। डेफिनेटली हमारे हमारे जैसे मुल्क में माँ बाप बच्चों के ऊपर पैसा लगाते हैं, वो यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा, आने वाली नस्ल के लिए आसानियां होंगी। लेकिन जब उसे मुल्क के अंदर ये चीजें नहीं मिलती तो वो बाहर ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम जो हमारा सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है हमारी, वो है ज़राअत की। ज़राअत के अंदर हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया जा रहा। रिसर्च सेंटर्स खुले हुए हैं, जैसे इस्लामाबाद में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, ठीक है, NARC के नाम से, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। वहाँ पे रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है। मैं खुद भी वहाँ पे विजिट किया हुआ, मेरे दोस्त भी हैं यहाँ से PhD करने के लिए भी बाहर गए हुए हैं, अमेरिका के अंदर गए हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि हम वो कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उनकी क्या हो रही है, या सिर्फ फंडिंग खाई जा रही है, ठीक है। मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि ऐसा मसला नहीं है कि फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आती, गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है फंडिंग, लेकिन वो जाती कहाँ है, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इस बोला कि एग्रीकल्चर के ऊपर हमें जो है ना बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा है, हम एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि अगर मैं एक मिसाल दूं आपको मोरिंगा की, इंडिया उसकी एक्सपोर्ट करता है तकरीबन $5 अरब सालाना, ठीक है। और हमारे पास एक जो है ना थैली भी नहीं हम बेचते, ठीक है। तो सारा केमिकल वालों ने काम शुरू किया हुआ था, मुझे डॉक्टर साहब हैं वो बाजवा साहब हैं, उन्होंने ये इस पे काम शुरू किया था, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं जा सके, क्योंकि हमारी ना गवर्नमेंट जो है वो सपोर्टिव नहीं है इस मामले में। तो हम और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम ये जो मसाला जात तैयार किए जाते हैं, जैसे शान का मसाला है, वो बड़ा मशहूर हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। इस तरह वो सेल्फ मेड बिजनेस था, या जो भी कह लें उसको। तो लोग सेल्फ मेड हमारे पाकिस्तान में जितना भी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो करते हैं। जैसे IT, अगर हम इसकी बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, तो हमारा बहुत सारा माल इसी वजह से दुनिया में नहीं बिक रहा कि हम बहुत ज्यादा बदनाम है। तो हमें क्या अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, मेड इन पाकिस्तान नहीं है, क्या कहीं और कंट्री की मोहर लगानी पड़ती है। तो हम उसकी वजह से, क्योंकि हम बदनाम इसीलिए है कि हमें यहाँ पे सहूलतें पूरी नहीं है। तो हमारा जो क्या कहते हैं उसको, टेक्सटाइल ट्रेडर्स जो है, जो भी है बंदा, वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढता है। जब शॉर्टकट्स ढूंढता है उसके अंदर फिर वो 2 नंबरियां भी चलती हैं, तो वो फिर दुनिया में जो है ना उसको सर सामने किया। आपकी इसी बात पे एक छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपने बोला कि स्कूल्स बनाए जाएं, ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं। अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर में कर लेता है काम, अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको कर्जा फराम करके उनको बिजनेस करवाया जाए, तो जैसा कि हम इसी इदारे की बात कर लेते हैं, शटल कॉमर्स, जहाँ पे अमेजोन का स्किल सिखाया जाता है, बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, और वो उसके बाद अर्निंग के मौके उनको फराहम किए जाते हैं। तो हमारी यूथ जो है वो इस लाइन पे चली गई है कि हमने आज स्किल सीखा है और कल हम अमीर हो जाएं, ठीक है। जिस वजह से हमने अपना इमेज पूरी दुनिया में खराब किया होगा। आपने देखा होगा साहिवाल क्रॉस करो तो हमारे अकाउंट बैन हो जाते हैं, मुल्तान वाली साइड पे जाओ हमारे अकाउंट बैन हो जाते हैं, मियां जनरल जाओ हमारे अकाउंट बैन हो जाते हैं। जो इसमें सबसे पहले देखें जी, जैसी यूथ वैसा हुक्मरान, ठीक है। हमारी यूथ ने अपने इमेज को इतना खराब कर दिया कि हम किसी और कंट्री में जाए काम भी करते हैं तो हमें वहां भी हमारी मेहनत का मुआवजा, ठीक है, हमें अच्छा नहीं समझा जाता। तो सर ये वो लोग हैं जिनको बिजनेस के लिए कर्जा फराम किया जाए और उस बिजनेस से कोई फायदा नहीं देते, और ये वो पेमेंट खा के साइड पे रहते हैं, ना ये उससे बिजनेस करते हैं, ना उस बंदे को किसी काबिल रहने देते हैं। सर जी सीधी सी बात है, सप्लाई एंड डिमांड का एक फार्मूला चलता है। सप्लाई एंड डिमांड क्या चीज है कि आप डिमांड करोगे तो सप्लाई मिलेगी आपको, ठीक है। आज हमें अगर ना कुछ सोलिंग लगा के दे देना हमारे घरों के सामने, तो कल वो आएगा, वो उससे नीचे हम उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कहेंगे कम से कम चलो सोलिंग तो लगे नहीं, या उससे ऊपर बजरी वाला, या जिसे हम कहते हैं लुक वाला लगना चाहिए, रोड अच्छा है, इससे बेहतर होना चाहिए, या टाइल लग जाए अच्छी वाली।
तो असल में ना हमारी यूथ को ना मसला ये है कि मैं अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी यहाँ का एक्स स्टूडेंट हूँ या अब इनकी मैनेजमेंट में शामिल हूँ। तो मैंने जो नोट किया मसला ये है कि बच्चे पढ़ने के बाद ना जब जो कोर्स हमारा जितनी देर का है 2 महीने का कोर्स है या 3 महीने का कोर्स है, करने के बाद वो समझते हैं कि हम घर में चले जाएं तो बस हम बैठे हैं और कमा लें, उस्ताद बन गए। तो उस्ताद बनने के लिए ना आपको सीखना पड़ता है पूरी तरह से, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता चलेगा कि जी बिल्कुल, जब आप क्लाइंट से लोग जाके बात करते हैं तो उनको पूरा नॉलेज नहीं होता। टेक्निकल नॉलेज की बात करें, टेक्निकल नॉलेज कब आएगा आपको, जब आप उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। प्रैक्टिस कब आएगी, जब आपको एक वर्क स्पेस यहाँ पे दी जा रही है, इंक्यूबेशन दी जा रही है, अगर आप उसको वेल करेंगे नहीं तो आपको कैसे मतलब जो है ना वो पूरी तरह काम करना कोशिश आएगा। करने के बाद एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है इंटर्नशिप, जी 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 वो मैक्सिमम 1 साल लगाना पड़ता है। आप कोर्स टूल्स आप सीख जाते हो, लेकिन आपने उसकी मैनेजमेंट, उसका तरीकाकार, उसका वर्किंग जो है पीरियड, कैसे आपने इसको लेके चलना है, क्या। अब कोई भी बंदा जो आपका टीचर है, वो टीचर बना है 7 साल में, तो आपको कैसे वो 3 महीने में अपना उस्ताद बना सकता है, ठीक है। उसके लिए देखो जी, आपने अब किसी चीज का टेस्ट लेना है ना, उसको वक्त देना पड़ता है, तो वो फिर वक्त के बगैर तो कुछ नहीं होता है। लेकिन ना वो वही बात है ना कि आप प्रैक्टिकल सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक जो है बैकअप टीम का अरेंज किया हुआ है। गर्ल्स के लिए गर्ल्स की बैकअप टीम है, बॉयज के लिए बॉयज की बैकअप टीम है। तो वो पूरी तरह आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे सिखाते हैं। 5 महीने का कोर्स इसलिए कर दिया हुआ है कि आपको 2 महीने की क्लासेस है, 3 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरी तरह से बैकअप सपोर्ट दी जाएगी। अगर आपका क्लाइंट आता है तो उसको किस तरह आपने हैंडल करना है, किस तरह आपने जो है ना अमेजोन के ऊपर आपने काम किस तरह करना है, तो वो टोटली तभी आएगा जब आप आगे यहाँ पे टाइम देंगे। तो बच्चे समझते हैं कि पढ़ने के बाद ना टाइम खत्म हो गया। देखिए कोई भी काम करते हैं उसको इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप करने के बाद आप सीखते हैं, फिर आपको जाके काम आना शुरू होता है। इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा करके आप घर में बैठ जाएं तो आपको स्विच भी लगाना नहीं आएगा, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिकली उसमें से गुजरेंगे नहीं तो काम नहीं आएगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई आप किसी स्किल को पढ़ते हैं, जाके किसी से सीखते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली भी करें, फिर आपको जो है वो काम आएगा। काम करने के लिए आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।